السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سابقہ حکومت کے قرضوں اور غلطیوں کو سدھارتے ہوئے ریاست کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔ مودی کا 10 سالہ اقتدار تلنگانہ کے لیے فائدہ مند نہیں رہا۔ وقار آباد میں پرجا باٹا پروگرام سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ ماحولیاتی تحفظ، آلودگی کنٹرول اور موسمی تبدیلیوں پر عوامی بیداری ضروری۔ یونیورسٹیز کے ساتھ انٹرنشپ پروگرام کی تجویز، چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے چینی فوج پر حملہ کرنے اور پیچھے ڈھکیلنے کا حکم دینے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ سابق فوجی جنرل کے مضمون پر بیرسٹر اویسی کا سوال۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو پھر بنایا تنقید کا نشانہ۔ اور نامپلی کے حدود میں واقع فورنسک لیب کے کمپیوٹر لیب میں لگی آگ، کئی کمپیوٹرز کے جلنے کا خدشہ، تحقیقات جاری۔ KTR نے کیا شبہات کا اظہار۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ سابقہ حکومت کے قرضوں اور غلطیوں کو درست کرتے ہوئے وہ ریاست کو آگے لے جا رہے ہیں۔
विकाराबाद में प्रजापाटा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में 10 बरस केसीआर और मरकज में 12 बरस मोदी इख्तिदार में रहे, मगर तेलंगाना को खातिर ख्वाह फायदा नहीं पहुंचा। वजीर आला ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी को देखकर वोट मांगना अवाम की तौहीन है। मसाइल मुकामी नुमाइंदों को हल करने चाहिए, न कि दिल्ली को देखकर। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया समझौतों का इल्जाम भी लगाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वाकई फंड्स मिले होते तो आज घर घर वोट मांगने की नौबत न आती। प्रणिता चेवल्ला प्रोजेक्ट, गोदावरी जल और रंगारेड्डी जिले को तरक्की में साबिका हुकूमतों की नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत आपाशी मंसूबे मुकम्मल करेगी और अजला को सरसब्ज बनाएगी। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बदउनवानी के इल्जामात आयद करते हुए कहा कि अवाम को फायदा नहीं पहुंचा। हुकूमत की कामयाबियों में राशन कार्ड्स, बारीक चावल, किसान कर्ज माफी, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली और 70,000 सरकारी मुलाजिमतों का जिक्र किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आने वाले बरसों में इंदिरम्मा राज जारी रहेगा और बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। ఇవాళ అప్పుడే దిగిపో అంటారు. 5 ఏళ్ల కోసం ఎన్నికైనా మరో 5 ఏళ్లు గెలుస్తాం. ఈ రోజు నుంచి రాసి పెట్టుకో చంద్రశేఖర్ రావు, కల్వకుంట్ల కిషన్ రావు గారు రాసి పెట్టుకో, బీజేపీ నాయకుడా, రాబోయే 8 సంవత్సరాలు ఇందిరమ్మ పాలన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే నెంబర్ 1 గా అభివృద్ధి చేసి మా రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు పూర్తి చేసుకుంటాం, మా వికారాబాద్ కృష్ణా రైల్వే లైన్ పూర్తి చేసుకుంటాం, మా ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసుకుంటాం, మా మక్తల్ నారాయణపేట కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసుకుంటాం, మా వికారాబాద్ను ఒక ప్రపంచ పర్యాటక కేంద్రంగా మేము పూర్తి చేసుకుంటాం, మా అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ నుంచి తాండూరుకు రోడ్డు పూర్తి చేసుకుంటాం, కాగ్నా నీళ్లు తాండూరుకు తీసుకెళ్తాం, కాగ్నాలో తాండూరులో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీని పూర్తి చేసుకుంటాం. నువ్వు నీ తాతలు అందరు ఎవరెవరు అడ్డం వస్తారో చూస్తాం. ఈ ఎన్నికల్లో మీరు చేసే కుట్రలన్నీ కూడా చెయ్యండి అని చెప్పి నేను ఈరోజు సవాలు విసురుతున్నా. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने केसीआर और केटीआर पर सख्त जवाबी हमला किया और कहा कि बीआरएस कायदीन के इल्जामात का मकसद हमारी तरक्याती सरगर्मियों में रुकावट डाली जा सके। जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर को नोटिस दिए जाने पर गैर जरूरी हंगामा किया जा रहा है, जबकि फोन टैपिंग जैसे मामूली मामलात में नोटिस देना फितरी बात है। उन्होंने कहा कि हरीश राव और केटीआर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो केसीआर की तारीख मिटाना चाहते हैं, मगर जाली पासपोर्ट, जाली नोटों और झूठे वादों की तारीख मिटाई नहीं जा सकती। वजीर आला ने कहा कि 10 बरस की लूटमार की तारीख कभी खत्म नहीं होगी और तेलंगाना की तारीख रहने तक पापों के भेरों की कहानी भी बाकी रहेगी। उन्होंने वाजे किया कि इस तारीख को याद रखवाना उनकी जिम्मेदारी है। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने कहा कि EPTRI को रियासत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी कंट्रोल और मौसमियाती तब्दीलियों पर अवामी बेदारी बढ़ाने में मज़ीद मौसर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने तहक़ीक़, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, आगाही क्लासेस और JNTU उस्मानी यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ मुश्तरका बेदारी प्रोग्राम्स को मजबूत बनाने की हिदायत दी। रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा EPTRI बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तहक़ीक़, तरबियत और सलाहियत साजी के प्रोग्राम्स को मजीद वसअत दी जाए। इजलास में मौजूदा सरगर्मियों, मुस्तकबिल के मनसूबों, तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट्स, इंसानी वसाइल की तरक्की और माली उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि सनती तरक्की, शहरी तरक्की, ठोस कचरे के इंतज़ाम, पानी और फ़िज़ाई आलूदगी कंट्रोल और शजरकारी जैसे शोबों में EPTRI को ज़्यादा सरगर्म होना चाहिए और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को मौसर बनाना चाहिए। इजलास में जंगलात, मालियात, आपाशी, बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ और शहरी तरक्की के आला अहदेदार, बोर्ड मेंबरान और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वजीर पूनम प्रभाकर के साथ करीमनगर जिले इंचार्ज वजीर तुमला नागेश्वर राव ने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में अवामी हुकूमत के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कई नामुमकिन नजर आने वाले मसाइल को जुर्रतमंदाना फैसलों के जरिए हल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली मरतबा ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करके कमज़ोर तबक़ात को समाजी इंसाफ फराहम किया गया। साथ ही तवील अरसे से ज़ैर इल्तिवा मादिगा ज़ैली ज़ातों की दर्जाबंदी और SC दर्जाबंदी को अमली जामा पहनाया गया। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र पर 9,800 करोड़ रुपये खर्च किए गए। गरीबों को मेयारी चावल फराहम
फराहम किए जा रहे हैं। 75,000 नौकरियां दी गई और तेलंगाना ज़रूरी पैदावार में मुल्क में पहले मुकाम पर है। उन्होंने मजीद बताया कि किसानों को 500 रुपये बोनस, 21,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी, 4 लाख इंदिरम्मा मकानात, हथकरघा कारीगरों की कर्ज माफ़ी और दीगर फलाही इक़दाम किए गए। वज़रा ने कहा कि अवाम ने मुख्तलिफ इंतखाबात में कांग्रेस को भरपूर हिमायत दी है और आइंदा म्युनिसिपल इंतखाबात में भी तमाम बल्दियात में कांग्रेस का परचम लहराने का अज़्म जाहिर किया। गजवेल MPDO चौरास्ते पर मुनक़्क़दा इंतखाबी जलसे में साबिक़ वज़ीर और BRS LP के डिप्टी लीडर हरीश राव ने कहा कि KCR ने तरक्की की जबकि रेवंत रेड्डी तबाही की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में रेवंत हुकूमत ने कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया, इसीलिए वो अपोजिशन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं। हरीश राव ने कहा कि KCR के दौर में गजवेल में पानी के मसाइल हल हुए और इलाका तरक्की की राह पर गामजन हुआ। कोरोना के दौरान KCR की क़यादत में अवाम की हिफाजत की गई। उन्होंने वोटर्स से अपील की कि कार के निशान पर वोट देकर BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बादज़ां तोपरान बस स्टैंड पर भी हरीश राव ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी बलदियाती इंतखाबात के नाम पर अवाम को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2023 में कांग्रेस की जानिब से दी गई गारंटियों, पेंशन में इजाफा, 2 लाख के कर्जे, 1 तोला सोना में से कोई भी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डाइवर्जन सियासत कर रही है। वज़रा और अफसरान के कमीशन तनाज़ात को दबाया जा रहा है और MIM को खुश करने के लिए कांग्रेस और BRS दोनों काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रिजर्वेशन मामले पर भी वोट बैंक सियासत की जा रही है और इंतखाबात में सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी 2 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करें और सवाल उठाया कि KCR के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट कौन डाल रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि BJP इख्तिदार में आकर कांग्रेस और BRS दोनों की बदउनवानी पर कार्रवाई करेगी और तेलंगाना को एक सियासी मुतबादिल की जरूरत है। सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में बैकडोर के जरिए बैकलॉग भर्तियों की कोशिशें हो रही हैं, जिससे बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल, रेवेन्यू, आबपाशी, बिजली, ट्रांसको और जेंको महकमों में जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस सब ऑर्डिनेंट जैसे ओहदों को गैर कानूनी तरीकों से पुर करने की तल्लात मिल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मुदाखलत करे, अफसरान को सख्त वार्निंग दे और भर्तियों को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर यकीनी बनाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि पैसे देकर या कुछ लेकर नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मेरिट पर नौकरी के ख्वाहिशमंद नौजवानों के साथ जागृति खड़ी रहेगी। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS ने BC रिजर्वेशंस की मुखालिफत करने वाले B माधव रेड्डी को म्युनिसिपल इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माधव रेड्डी ने BC रिजर्वेशंस बढ़ाने के खिलाफ अदालतों का रुख किया और उनके पीछे BRS क़यादत और कल्वकुंटला खानदान का हाथ है। आदि श्रीनिवास के मुताबिक BC रिजर्वेशंस रुकवाने में BRS और BJP ने मिलकर किरदार अदा किया है। उन्होंने BC तबकात से अपील की कि म्युनिसिपल इंतखाबात में BRS और BJP दोनों को शिकस्त दें। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राज्यसभा में वजीर आजम के खिताब के अलावा हिंदुस्तानी फौज के साबिक सरबराह की किताब को लेकर भी रद्द अमल जाहिर किया है। निजामाबाद के जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोविड के दौर से ही वो बता रहे थे कि चीन मुल्क में दरअंदाजी कर चुका है। हिंदुस्तानी फौज के जनरल ने भी अपनी किताब में लिखा कि चीनी फौज और टैंक लद्दाख में दाखिल हो चुके हैं। फौज के जनरल ने वजीर आजम के दफ्तर को फोन किया, तमाम मुतल्लिका अहदेदारों को भी तल्ला दी गई, लेकिन कुछ देर बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जो मुनासिब समझे वो कीजिए, क्यों चीनी फौज पर हमले का हुक्म देने की हिम्मत नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा मियां ऑटो ड्राइवर को 1 रुपया कम किराया देने के बयान की भी शदीद मजम्मत की और अपनी तरफ से 2 रुपये अकाउंट में जमा कराने की पेशकश की। UGC बिल को लेकर भी सदर मजलिस ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था, कोविड के जमाने से मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं
کہ لداخ میں چین کی فوج ٹینک آنا شروع ہوئے، جنرل صاحب نے وزیر اعظم کے آفس کو فون کیا، وزیر دفاع سے بات چیت کی، NSA سے بات چیت کی، جتنے ذمہ دار ہیں ان سے بات کر کے کہا کہ چین کی فوج آ رہی، کیا کروں؟ ٹائم دیا انہوں نے، یہ ٹائم کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے، اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جنرل صاحب بولتے ہیں اور وہ میگزین لکھتا ہے کہ وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا کہ جو اچت ہے وہ کریے، جو اچت ہے وہ کریے۔ اور ہم لوگ کیا کیے تھے؟ بالا کوٹ میں سٹرائک کیے تھے پاکستان کے اوپر، اور موڈی کیا بولے تھے میڈیا کو؟ میرے کو فوج کے لوگ آ کے بولے کہ سر ابھی ٹائم نہیں ہے، بادل بہت ہیں۔ موڈی جی جنگ کے ایکسپرٹ ہیں، جنگ کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں بولے بادل ہے، بادل کا ایڈوانٹیج لو، گھس جاؤ مارو۔ یہ الگ بات ہے کہ پلین کا ریڈار جاتا تو ٹیکنالوجی سے معلوم ہوتا، مگر موڈی جی کا دماغ، انہوں بولے بادل ہے گھس جاؤ۔ موڈی جی جب بادل کو دیکھ کے آپ بولے اٹیک کرو بالا کوٹ میں، یہ جنرل آپ کو بول رہا تھا چین کی فوج آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی، آپ بولے جو اچت ہے وہ کرو۔ میرے بھائی، بھارت کے لیے جو اچت ہوگا وہ کام کرنا پڑے گا۔ 56 انچ کے سینے کے دعوے کرنے والوں، RSS BJP والوں، بتاؤ، فوج کا جنرل پکار کر کہہ رہا تھا اور آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ فون کر کے بولتے مارو ان کو، مار کے پھوڑ کے باہر نکالو بھارت کی زمین سے، آپ نہیں بول سکے۔ گولوالکر آرگنائزر میگزین میں لکھ کے دیے کہ سومناتھ کی مندر کو جب لوٹا جا رہا تھا تو ہندو راجا بھی ساتھ تھے۔ بولو موڈی جی کون تھے وہ؟ مانے ہر چیز کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، بولتے تاریخ کا بدلہ لو۔ کس سے بدلہ لیں گے آپ؟ کس سے بدلہ لیں گے بولو؟ چلو شروع کرو، بدلہ لیتے ہیں۔ راون کے ظلم کا بدلہ کون لے گا؟ مہابھارتا میں جو کوروا نے کیا اس کا بدلہ کون لے گا؟ بتاؤ کون لے گا؟ پشپمترا سنگا نے جو مندروں کو توڑا اس کا بدلہ کون لے گا؟ موریاس کے زمانے میں ہنس آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ دلی کی سڑکوں پر سکھوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، اس کا بدلہ کون لے گا؟ آسام میں نلی میسکر ہوا، 4000 مسلمانوں کو راتوں رات کاٹ کے پھینک دیا گیا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ ارے کب تک بدلے کی بات کر رہے؟ کب تک تم بدلہ بدلہ بولو گے؟ ارے کبھی تو کچھ تو غریب کو دو۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے اس دیش میں بھوکے سوتے ہیں رات میں۔ ان بھوکے سونے والے بچوں کا پیٹ خالی ہوتا تو اس کا بدلہ کون لے گا؟ یہ آسام کا ایک مکھیہ منتری ہے، 2 روپے ہے کسی کے پاس؟ یہ 2 روپے دو، 2 روپے کا کوئی دلو۔ یہ 2 روپے ہے۔ آسام کا چیف منسٹر بول رہا ہے کہ اگر وہاں کے میاں مسلمان آٹو میں کسی کو بٹا کر لے کر گئے، 5 روپے اگر آٹو کا کرایہ تو 4 روپے دو۔ ہیمنت بسو شرما، یہ 2 روپے کی بھیک تیرے کو دیتا ہوں میں، لیتا کیا تو بول؟ بول، تو 2 روپے کا بھکاری ہے، میں جانتا ہوں تیرے کو۔ تو صرف اتنا کم آدمی ہے، اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ غریب جو آٹو چلاتا 5 روپے 4 روپے لے کہاں لیتا؟ بول، دیتا ہوں آ کے تیرے کو، ڈالوں تیرے اکاؤنٹ میں، ڈال دوں یہ 2 روپے کو۔ بتائیے آپ کیا ہے یہ؟ بھارت کے آئین پر قسم کھاتے ہم تمام لوگ۔ وہ آئین بولتا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، مکھیہ منتری ہو، کسی کو بھی پرائم منسٹر ہو، مگر بولتا نہیں میاں ہوں گے تو ایسا کریں گے۔ ووٹ ڈالنا ہے تو بنگلہ دیش میں جا کے ووٹ ڈالو۔ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی تو میاں ذمہ دار ہے۔
अरे क्या है ये, तुम क्या करना चाहते हो? कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी मरहूम की खिदमात को खिराज पेश किया। कायदे मजलिस ने मरहूम के मकान पहुंचकर पसमानदगान को पुरसा दिया। मरहूम के फर्जंद जुनैद पाशा को उन्होंने दिलासा दिया। उन्होंने मरहूम के साथ अपनी देरिना रफ़ाक़त को इस मौके पर याद किया। मरहूम के लिए उन्होंने दुआए मग़फ़िरत की और पसमानदगान को सब्र जमील की तलक़ीन की। सैयद अहमद पाशा कादरी मरहूम का मंगल 3 फरवरी को तवील अलालत के सबब इंतकाल हो गया था। चहारशंबा 4 फरवरी को उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़े नूरखां बाजार में तदफीन अमल में आई। वो 4 मियादों तक रियासती असम्बली के रुकन रहे थे। गदवाल में मजलिस के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। महाराष्ट्र के साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान ने मजलिस के कॉरपोरेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलालक के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वारिस पठान ने 11 फरवरी को होने वाले बलदी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। गदवाल के वार्ड नंबर 8 और 24 में इंतखाबी मुहिम चलाई गई और वारिस पठान ने कहा कि मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। तेलंगाना में इंतखाबी नताइज के बाद उम्मीदवारों के पार्टी बदलने का खदशा शायद बीजेपी में ज्यादा नजर आ रहा है। हफ्ते को करीमनगर में रैली के दौरान ममलिकती वजीर बी संजय ने पार्टी के उम्मीदवारों को इस बात का हलफ दिलाया कि अगर वो इंतखाब जीतते हैं तो पार्टी तब्दील नहीं करेंगे। हलफ के दौरान माँ बाप के साथ साथ मजहब की भी कसम खिलाई गई। जामिअतुल मोमिनात की जानिब से 35वां एक रोज़ा रियासती तरबियती इज्तिमा बराए ख़वातीन बउनवान औरत तालीमी मैदान में उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़्क़िद हुआ। जिसकी सरपरस्ती अल्लामा सैयद शाह दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी मुर्तज़ा पाशा कर रहे थे। इज्तिमा की सदारत अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन सदर मुफ्ती जामिअतुल मोमिनात ने की थी। इस मौके पर जामिअतुल मोमिनात की 208 फ़ारिग़ुत तहसील तालिबात को मेहमान ख़ुसूसी के हाथों असनादात और खिलतें अता की गईं, जिनमें डॉक्टरात, मुफ्तियात, फाजिलात, आलिमात, मौलवियात और हाफिजात कुरान शामिल हैं। जबकि साल 2025 में जमातवारी सतह पर आला निशानात हासिल करने वाली तालिबात को सिल्वर मेडल अता किए गए। इज्तिमा को प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मुफ्तियात के अलावा दीगर मर्द व ख़वातीन ज़िम्मेदारान ने भी मुखातिब किया। गजवेल शहर के मलन्ना सागर बाजाबतकरी और R&R कॉलोनी में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। म्युनिसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में साबिक़ वजीर हरीश राव के कॉलोनी पहुंचने पर कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान एहतजाज शुरू हो गया। इस दौरान दोनों जमातों के कारकुनों ने नारेबाजी की और एक दूसरे पर चप्पलें फेंकने की तल्लात भी सामने आईं। मलन्ना सागर से मुतासरा अफराद और कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, इसीलिए उन्हें कॉलोनी में दाखिल होने नहीं दिया जाए। एहतजाज के बायस इलाके में हालात कशीदा हो गए। नामपल्ली में वाक़ई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि कंप्यूटर लैब में आग लगी थी। लैब में मौजूद और इमारत में मौजूद अमला अफरा तफरी के दौरान बाहर निकल आया। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। तकरीबन 5 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि कई अहम केसेस की फाइलें भी इसी इमारत में रखी गई थीं। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक असम्बली, सेक्रेटेरिएट, गांधी आउटपोस्ट, सिकंदराबाद और लंगर हाउस के फायर इंजन्स को तलब किया गया था। एबिट स्टेशन फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने तस्दीक की कि पहले फ्लोर पर वाक़े कंप्यूटर रूम से आग लगनी शुरू हुई थी। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। डीसीपी सेंट्रल जोन के शिल्पावली ने मुकामी वाक़े का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि हफ्ते की सुबह 10 बजे दफ्तर के ऑफिस बॉय ने पहले फ्लोर से धुआं निकलते हुए देखा और फौरी मुतल्लिका हुकाम के साथ पुलिस को भी इत्तला दी गई। उन्होंने बताया कि यह नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में आता है। शिल्पावली ने बताया कि हाइड्रा और DRF की टीमें भी मुकाम वाक़या पहुंच गई थीं। आग पर काबू पा लिया गया है। तहम डीसीपी ने नुकसानात के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान फायर DG विक्रम सिंह मान ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि FSL में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और हार्ड डिस्क जल गए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मा के मौसम के लिए फायर सेफ्टी की टीमें मुख्तलिफ रिहायशी, तिजारती और सरकारी इमारतों का मुआयना करेंगी ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के
उस टाइम में एक ऑफिस बॉय ने नोटिस किया कि एक स्मोक आ रहा था एक फर्स्ट फ्लोर से, और ऑफिस बॉय ने इमीडिएटली अलर्ट कर दिया ऑफिसर्स को और पुलिस एंड फायर इंजन्स को। ये नामपल्ली पीएस लिमिट्स के अंदर आता है, तो नामपल्ली पीएस बाजू में ही है, तो इमीडिएटली पुलिस वाले आए और हाइड्रा, देन डीआरएफ, फायर इंजन्स, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग वाज इमीडिएटली सब अरेंज हो गए हैं और फायर कंटेन करने के लिए सारा कोशिश कर दिया, और अभी तक तो ये कंट्रोल में आ गया। ठीक है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर किरी रामाराव ने नामपल्ली में वाक़ फॉरेंसिक लैब में आग लगने के वाक़े पर शुबहात का इज़हार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर केटीआर ने शुबह ज़ाहिर किया कि हो सकता है कि मशहूर ओट बड़ाए नोट केस की वॉइस रिकॉर्डिंग आग की नज़र हो गई होगी, या फिर फोन टैपिंग मामले में हुकूमत के पास जो पुख्ता शवाहिद नहीं थे, इससे भी हुकूमत बचने की कोशिश कर रही थी। कुल हिंद सनती नुमाइश में मर्द ख़वातीन, बच्चे और मुअम्मर अफराद बेहतर तरीके से न सिर्फ वक्त गुजारा करते हैं बल्कि वो पसंद आने पर कई अशिया की ख़रीदारी कर लेते हैं। हर साल दिसंबर का महीना आते ही लोगों को जनवरी का इंतज़ार शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ रोशनियों से सजी नुमाइश मैदान बक़े नूर बन जाता है, जहाँ मुख्तलिफ खुशबू के अलावा हर तरफ नूर और चांदनी की बारात आ जाती है। 1938 में रियासत हैदराबाद 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने हैदराबाद में अपने मुल्क की तमाम मसनूआत की नुमाइश का बाग़-ए-आमा से आगाज़ किया था। हैदराबाद की उस वक्त इल्म अदब, सनत और तहज़ीब ही उसकी पहचान थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नुमाइश के अय्याम में इजाफा होता गया। नुमाइश में मुल्क की तमाम रियासतों की मसनूआत, क़ालीन, मलबूसात, खुश्क मेवेजात, अतर के अलावा खिलौनों और दस्तकारी की अशिया के अलावा कई ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी नुमाइश में अवाम की दिलचस्पी के लिए रखी गईं। नुमाइश एक बहुत बड़े मेले से भी तजावुज़ करके आज सनतकारों और ताजरीन के लिए आमदनी का ज़रिया बन गई। बेगमपेट के इलाके में पुलिस ने दरख्त पर चीनी मांझे की जद में फंसी हुई चील को आज़ाद कराया। एडिशनल डीसीपी लक्ष्मी और एसीपी शंकर राजू ने दरख्त पर फंसी हुई चील की निशानदही की और फिर मातहत अमले के जरिए मांझे से चील को आज़ाद कराया गया। पुलिस ने एक बार फिर आवाम से चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करने की अपील की है। तेलंगाना मंचिर्याल जिले के बेलमपल्ली एससी गर्ल्स हॉस्टल में समेत गुज़ा से मुतादिद तालिबात मुतासर हुई हैं। मुतासरा तालिबात को करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि खाने के बाद तालिबात की तबीयत बिगड़ गई थी। सरपरस्तों ने बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर फिक्रमंदी जाहिर की है। हज हाउस में हफ्ते को उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब टेमरिस के एक मुलाजिम ने इंतजामिया पर बरहमी का इज़हार करते हुए इक़दाम खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा शख्स की शनाख्त तावरिया की हैसियत से की गई है, जो चारमीनार ब्रांच टेमरिस का प्रिंसिपल बताया जा रहा है। बताया गया है कि तावरिया इंतजामिया के रवैये से नाराज़ है और इसी सिलसिले में वो हज हाउस आया और मुत्तसिल गार्डन व्यू वक्फ माल की इमारत से छलांग लगाने का मंसूबा रखता था। ताहम मुकामी अमले ने उसे पकड़ लिया और नीचे उतार लिया। मीडिया के नुमाइंदों ने जब उससे सवाल किया तो उसने बताया कि वो इंतजामिया से नाराज़ है, ताहम मुकम्मल वजह नहीं बताई। बाद में जब मीडिया के नुमाइंदों ने मुतल्लिका हुक्काम से राब्ते की कोशिश की, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हैदराबाद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी है। बाइक और कार रेसिंग की शिकायत का नोट लेते हुए पुलिस ने यह मुहिम अंजाम दी है। पुलिस ने करतबबाजी करने वालों को इंतबाह दिया है कि अगर कोई इस सिलसिले में पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश की एनटीआर जिले काचरला पुलिस स्टेशन के हदूद में कानगी मुसाफिर बस शोलापोश हो गई। वाक़े के वक्त बस में 39 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बताया गया है कि हफ्ते की सुबह 6 बजे वाक़या पेश आया। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। नंदीगामा के पास अचानक बस से धुआं निकलने लगा। इस दौरान तमाम मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन
दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां पेश करते हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। साबिका हुकूमत के कर्जों और गलतियों को सुधारते हुए रियासत को आगे ले जाया जा रहा है। मोदी का 10 साला इख्तिदार तेलंगाना के लिए फायदेमंद नहीं रहा। विकाराबाद में प्रजाबाटा प्रोग्राम से वजीर आला का खिताब। माहौलियाती तहफ्फुज, आलूदगी कंट्रोल और मौसमी तब्दीलियों पर अवामी बेदारी जरूरी। यूनिवर्सिटीज के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की तजवीज, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। वजीर आजम और वजीर दिफा ने चीनी फौज पर हमला करने और पीछे ढकेलने का हुक्म देने की हिम्मत क्यों नहीं की। साबिक फौजी जनरल के मजमून पर बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को फिर बनाया तनकीद का निशाना। और नामपल्ली के हदूद में वाक़े फॉरेंसिक लैब के कंप्यूटर लैब में लगी आग। कई कंप्यूटर्स के जलने का खदशा, तहकीकात जारी। KTR ने किया शुबहात का इजहार। नाज़रीन, के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।